So, Assalamu alaikum. Hi, I'm Sayyid Numan Ali. I'm here to teach you the topic Introduction to Sociology, and we are going to discuss the basic concept of sociology. Sociology, you will also say that the community development, because the application of sociology is to study about the society and to develop the community as well. So our topic is about to understand the basic concept of sociology. So uh, first we have to be understand uh, what is sociology about. So sociology is basically a scientific study of society, and through this subject we have a better understanding about the social world, and we can understand the social phenomena, or also understand well the social behavior. Different sociologists has different perspective regarding the sociology, but the etymology of this subject is the first. uh, yes, here is a content. First we have to be talk about the definition, different definitions of and this topic, and then what are the scope of sociology, and what are the subject matter of it subject matter means which topic, which subject we have to be study about. And then we relate with other sciences also. We have many multiple sciences, and some interdiscipline are there, from which branch and from which subdivision that courses belongs to. So first one, what is sociology about? So as I told you, sociology is the scientific study of human society and social behavior, and we can learn the social behavior through social interaction, and we construct the society by understanding the behavior of a society, doing things together. This one is the motto. And when we talk about the human society comprise of social life, social change, and many social issues are there. And when we want to improve the social problem and want to get the knowledge about the society, so we have to be go through for the sociology. You can also say that uh, this subject is examine about the social world and how this social environment influence us. Sociology, you can say that it is the study of about the social life, social change, and the social problem and social issues, the consequences of human behavior, and the effect from the society. We are born free, but yet everywhere we are chin up, and we are influenced by the, we are too much influenced by the social behavior. So different sociologists give the different definition. The first sociologist in 11th century was the Ibn Khaldun, and later on in the modern world, Auguste Comte was considered as the father of sociology. They have contributed about how to understand the society, how to understand the human within the society, man to man, um, man to group, how we relate with each other, and how do we product social behavior. So Comte was the first one who invented the word sociology, and he studied that subject to predict the social behavior. And later on Durkheim, Marx, and the Max Weber, they all are the early contribution. We have a separate session on it, how many early thinkers can contribute, in what manners they contribute. So initially, we can say that what is sociology is about. So sociology, socio means a study about the society. Logy means the study. So it's in a simple way, we can say that it is the scientific study of society. And we can also say that it focuses primarily on the influence of social relationship upon the people behavior,
and how societies are established and changed. And the ultimate aim of sociology is to what? Improve men adjustment to life by developing objective knowledge concerning social phenomena which can be used to deal effectively with social problem. सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम जो लोगों के बिहेवियर्स हैं उसको इस तरह से मोल्ड और एडजस्ट करें जो विद इन द सोसाइटी कंफॉर्मिटी तैयार कर सके, कोलैबोरेट कर सके और एक सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर डेवलप हो. Or the goal of the goal of sociology and the project of the sociologist is to improve the life of a human within the group, within the society, and the purpose of giving and addressing the knowledge about to understand the social issues, drives, crime, suicides, mental disorders, and many multiple social issues are there. Poverty. What are the causes behind this? क्या इस सब का social issues का society के साथ कोई गहरा ताल्लुक है? कैसे इसको लिंक करते हैं? कैसे इसको scientific study करते हैं? ये कोई layman perspective नहीं है. ये एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इसको स्टडी किया जाता है. और जब हम बोलते हैं साइंटिफिक तो इसका मतलब हमें क्लियर है कि आफ्टर डूइंग द मैनी रिसर्च हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर टेस्टिफाई करते हैं, फिर वेरीफाई होने के बाद सब सैंपल एंड सर्वे के बाद फिर हम कंक्लूड करते हैं. तो ये बात ऐसे ही उड़ती उड़ाती नहीं है. इट्स नॉट अ जर्नल ओपिनियन, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी. इस तरह से सोशियोलॉजी जो है कंसिडर की जाती है क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. अभी सोशल साइंसेस क्या है? अच्छा, एक होती है नेचुरल साइंस और एक होती है सोशल साइंस. नेचुरल साइंस जो नेचर के साथ है, जैसे कि कॉस्मो के बारे में पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं नेचर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो ये नेचुरल साइंस है. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो नेचर से कनेक्टेड, पहाड़ के बारे में, चरिन परिन के बारे में, एटम, मैटर, नॉन मैटर, एनर्जी, लाइट, ये सब नेचर से कनेक्टेड है. तो दैट्स व्हाई कॉल्ड द नेचुरल साइंसेस. सेकंड, एक और डिसिप्लिन है जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं. हम ह्यूमैनिटीज इसे कहते हैं. हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं. हम जो है इंसान की बात कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि मैन विद द मैन विद द कॉस्मो, मैन विद द यूनिवर्स, मैन विद द सोसाइटी, उसका क्या रिलेशनशिप है. तो जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हम बात करते हैं सोशल साइंस के डिसिप्लिन की. और जो सोशियोलॉजी इट्स द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. अच्छा, क्यों कहा क्वींस? क्योंकि सोसाइटी के बारे में पढ़ना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ना, टाइप्स ऑफ सोसाइटी हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, अंडरस्टैंड करना, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर स्टडीज़ करना, तो ये सारे डिसिप्लिन है जिसमें इंसान का इवोल्यूशन पता लगता है कि इंसान किस तरह से इवॉल्व हुआ और इंसान ने अपने आप को माशी तौर पे किस तरह से डेवलप किया. वरना लेजेंड ऑफ टार्ज़न की तरह जो ह्यूमन है वो एक बारबेरियन लाइफ गुजार रहा था, सेविज लाइफ गुजारते गुजारते अब वो बहुत सिविलाइज हो गया. तो सोसाइटी क्या ऐसे ही ग्रो करी? सोसाइटी में कौन से नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर जो है उसको असरअंदाज करते हैं. तो तभी हम ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन ASA के तहत जो डेफिनेशन बनती है वो यही है कि सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड द सोशल कॉज and the consequences of human behavior. तो ये अब आपको हमने justify भी कर दिया कि how this definition is related. तो remember that social sciences से belong करती है sociology. और क्यों करती है? क्योंकि it deals with the human. Okay. Whenever we talk about the society, हमें ये बात तो पता लग गई कि sociology जो है वो एक scientific study है. सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है किसके बारे में? अबाउट द सोसाइटी. और एक बादशाह जो जब बनता है, सोसाइटी डेवलप होती है अपने कल्चर से, वहाँ की वैल्यूज़ के साथ, नॉर्म्स के साथ. कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ, ये सब मिलाकर हमें एक माशरा देते हैं. अच्छा, वैल्यूज़ क्या होती हैं? यानी वहाँ के उसूल, कवायद, रवाज, तौर तरीके, उठना बैठना, वहाँ पे किसका क्या रोल होगा, बड़े छोटे का क्या किरदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा माशी तौर पे. हर माशरे के अपने कुछ, हमें देखें ना, एक कलेक्टिव सोसाइटीज़ भी नज़र आती हैं, तो एक हमें आइसोलेटेड इंडिविजुअल सोसाइटी भी नज़र आती है.
ठीक है। एक तरफ हमें पेट्रियार्की नज़र आती है, तो हमें एक तरफ जो है वो मैट्रियार्की नज़र आती है। तो वैल्यू सिस्टम जो है वो हर माशरे का अलग अलग हमें नज़र आता है। तो हम जब कहते हैं कि हम साइंटिफिक स्टडी अबाउट द सोसाइटी, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में क्या कुछ है। तो सोसाइटी में मैंने आपसे कहा वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, इस तरह वहाँ के नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स समझते हैं? नॉर्म्स मतलब रिवायात, ट्रेडिशंस। ठीक है, कि आपने कौन सा बिहेवियर रखना है जो अप्रोप्रिएट होगा, स्टैंडर्ड बिहेवियर होगा। और आप इस माशरे में रहते हैं, आप इस्लामिक माशरे में, मुस्लिम माशरे में, तो वहाँ पे आपको अल्कोहलिक का इस्तेमाल नहीं करना है, ड्रग्स का इस्तेमाल ममनू है, तो आपने सोसाइटी में उसी अंदाज में रहना होगा। इस तरह किसी और आप वेस्टर्न सोसाइटी में जाते हैं, तो वहाँ के जो तौर तरीके होंगे, किसी चीज़ को अच्छा समझा जाता है और हो सकता है आपके माशरे में उसको अच्छा ना समझा जाता हो। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटी। और वो आपके नॉर्म्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड बिहेवियर होते हैं, जिसके पैमाना जो है ये होता है कि कौन सी सोसाइटी किस वैल्यूज़ को फॉलो करे। इस तरह हर माशरे के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिससे कल्चर बनता है, और कल्चर का मतलब ही शेयर्ड वैल्यूज़ है। और यूँ समझें आप, जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो हम वैल्यूज़, कल्चर, बिलीव, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, इन सब को अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे तो इसको कलेक्टिवली एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एथनोलॉजी कहते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी जो है इट्स अ स्टडी अबाउट द ह्यूमन हिस्ट्री, और एथनोलॉजी द स्टडी अबाउट द कल्चर स्टडी। तो जब हम कल्चर, सोसाइटी कल्चर के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इस तरह से अगर हम बात करें सोशियोलॉजी जो है सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के ऊपर, तो हम देखें इसके एनालिसिस, सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। हमने कहा सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन है, सोशल फैक्ट्स को मद्देनज़र रखना है, एक्सपेंशन ऑफ सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंड करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ को देखनी है, और सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन हमें देखना है कि व्हाट आर द सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन। Okay, hello. Where we are talking about the subject matter. Subject matter. These are the subject matter. Subject matter basically called as uh, the study relationship between the various class of social phenomena. Subject matter is the study about the society, culture, and the personality within the society. सोशियोलॉजिकल एनालिसिस होता है इसमें, यानी ह्यूमन सोसाइटी को, कल्चर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है, फिर उसके फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी की बात होती है। और जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या कंसर्न है इससे, तो हम ज़िंदगी के जो सोशल लाइफ के जो इश्यूज हैं, इसमें इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ग्रुप, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, सबको स्टडी किया जाता है।
इसी तरह से सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस है जो अब सोसाइटी को डेवलप करता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिक, लीगल, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी को रन करने के लिए इनको स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से सोशल प्रोसेस के कॉपरेशन कैसे बनाते हैं, सोशल बिहेवियर कैसे होता है, सोशलाइजेशन कर सकते हैं किस तरह से, री सोशलाइजेशन कैसे होगी, और सोसाइटी में जो सोशल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, उसके बारे में स्टडी करना कि जो दर्जा बनती है इसके पीछे सबब क्या है। ये सारे सोशल चेंज किस तरह के सोसाइटी में चेंज आए, और वो चेंज है वो पॉलिटिकल सबब बने हो, और सोसाइटी में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये सब हम सब्जेक्ट मैटर है हमारा सोसाइटी सोशियोलॉजी का। इस तरह से सोसाइटी की अगर हम स्कोप और गोल की बात करें तो सोसाइटी का जो गोल है वो है कि स्टडी करना ह्यूमन सोसाइटी को, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इंडिविजुअल के एक्शंस को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और सोशल रिलेशनशिप को सोसाइटी के साथ, और सोशल लाइफ को एज अ होल अगर देखा जाए तो सोशल लाइफ कैसी होगी, और जो ह्यूमन लाइफ है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाता है विद द रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। और यू कैन ऑल्सो से दैट कि इसका एक और पर्पस है कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे बेटर होगा, एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपन, क्यों हो रहा है सोसाइटी में, सोशल फिनोमिना क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करके एक पैटर्न अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ऑब्जर्विंग पैटर्न, जिससे मैं सोसाइटी की को देख मेरे पास एक डीप इंसाइट आ जाएगी, और इससे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर में, ताकि एक हम बेटर माशरा बना सकें या अपने बिहेवियर को बेटरली एडजस्ट कर सकें, ताकि हम सोसाइटी के साथ जो है वो एप्रोप्रिएटली रह सकें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ये मकासद हैं, और मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि उसका कंटेंट आपके सामने आ गया है। देयर आर टू टाइप ऑफ साइंसेस, वन इज नेचुरल साइंसेस, अनदर इज सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस की मैंने आपको एग्जांपल दी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब का कंसर्न नेचर से है, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट से, एटम के बारे में, मैटर के बारे में, नॉन मैटर के बारे में। और सोशल साइंसेस मैंने आपको कहा इट वेरी विद ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन बिहेवियर के साथ है, सोसाइटी के साथ है, सोशल वैल्यूज के साथ है, और सबसे बड़ा हिस्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है कि इंसान जो है वो तब से अब तक, आदम से अब तक जो है वो इवॉल्व हुआ है, उसमें क्या बदलाव आया है, किस तरह के माशरे में वो रहता रहा है, तो क्या असर रसूख उसका रहा, तो ये सब हम सोशल साइंस में स्टडी करते हैं। इसलिए सोशल साइंसेस में हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस जैसे सब्जेक्ट हमें हाईलाइट नज़र आते हैं। तो जैसे भी हमने आपको बताया कि जो है सोशियोलॉजी जो है वो रिलेट की जा सकती है विद द अदर साइंसेस। तो अदर साइंसेस में मैंने अभी आपको नाम बताया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, psychology, all these are the different field of social sciences। तो सोशियोलॉजी का इससे क्या कनेक्शन है और क्यों ये इन सब्जेक्ट से जो है वो डिफरेंट है, ये अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन society and the human behavior. अच्छा, psychology is also claim that we are doing the scientific study of human behavior. So what is the difference between both of them? अच्छा, ये सोसाइटी के बारे में, वो इंडिविजुअल के बारे में। रिमेंबर दैट ये सबसे बड़ा आपको डिफरेंस आपके सामने नजर आता है अगर आप उसको कंट्रास्ट करें तो। अच्छा, सेकंड, साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंसेस। तो ये बात हमें समझ आती है कि जो सोसाइटी का डोमेन है वो ह्यूमन है, ह्यूमन सब्जेक्टिव, ह्यूमन सेंटर्ड नॉलेज है, और जब इसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल डिबेट कहते हैं, यानी मैन सेंटर्ड। अच्छा, नेचुरल साइंसेज है उसका तो नेचर से कंसर्न है ना, और हमने आपको बताया कि सोशल साइंसेज है वो ह्यूमन के साथ, सोशल वर्ल्ड के साथ। वन बाय वन अब हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसका रिलेशन देखते हैं।
सबसे पहले तो एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इज ए मैन सेंटर्ड स्टडीज, इज अ स्टडी अबाउट द ह्यूमन हिस्ट्री। इंसान जो स्पीशीज था होमो इरेक्टस से आज होमो सेपियन तक पहुंचा है, तो उसने किस तरह से अपने आप को प्रोग्रेस किया, और ह्यूमन कल्चर चेंज होते आए, उसका स्कल्प चेंज हुआ, तो उसकी सोच और ख्यालात बदलते गए। तो एंथ्रोपोलॉजी इज कम्प्लीटली द is the study about the history of human evolution। और एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चर स्टडीज को पढ़ते हैं, हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं, हम ग्रुप बिहेवियर को। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, तो सोशियोलॉजी में हम सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन इवोल्यूशन को नहीं देख रहे, बल्कि हम फिर कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स को देखते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, फिर सोशल इश्यूज की तरफ भी जाते हैं। इसी तरह एक और बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम साइकोलॉजी की सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो सोशियोलॉजी एज अ होल ग्रुप बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर विद द अदर। वरना साइकोलॉजी में तो देखा है आपने, वो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और इंडिविजुअल पार्ट जो है इसमें उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सब देख रहे हैं। तो जब हम सोसाइटी की बात करेंगे, तो उसमें हम एज अ ग्रुप, टीम वर्क, हम कल्चर, वैल्यूज, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सोशियोलॉजी इन दोनों से कैसे मुनफरद है? क्योंकि सोसाइटी में सोशियोलॉजी क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है सिचुएशन को, ह्यूमन सोसाइटी को, और सोसाइटी कैसे काम कर रही है। तो देखा जाए तो मैक्रो लेवल है सोशियोलॉजी का, क्योंकि वो एज अ होल, एज अ ग्रुप अंडरस्टैंड करेगी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कुछ जुर्म किया तो हम कहें साइकोलॉजिस्ट की तरह से कि भाई इसका दिमागी तवज्जो ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से ऐसा ऐसा परफॉर्म किया। सोशियोलॉजिस्ट इस केस स्टडी को ऐसे देखेगा कि इसका दिमागी तवज्जो क्यों खराब हुआ, या इसको सोसाइटी में ऐसी बातें कही गई, आखिर सबब क्या था। यही वजह है कि क्रिमिनोलॉजी जैसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है मॉडर्न इंडिया में, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनके माइंडसेट को अंडरस्टैंड किया जाए और उनके रिचुअल बिहेवियर को समझा जा सके। सोशियोलॉजी विद द अदर साइंस, हमने जैसे भी आपके सामने रखा कि सोशियोलॉजी ह्यूमन स्टडी को पढ़ता है, सोशल बिहेवियर को, सोशल इंट्रैक्शन की बात हो रही है, और जो सोशल फिनोमेना है, सोसाइटी के सोशल इश्यूज हैं, उसको अंडरस्टैंड करती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोशल इंट्रैक्शन, यानी हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग विद ईच अदर। और अगर हम सोशल फिनोमेना कहते हैं, तो सोशल फिनोमेना क्या है? माशरे का एक नज़र, एक वो पार्ट जो हमें सोसाइटी में नज़र आता है। कैसे नज़र आता है? रिचुअल से, सेरेमनी से, वहाँ के रहन रहन सहन से, खाने पीने से, और कल्चर्स को देख के, यानी सोशल फिनोमेना, ऑब्जर्वेबल इवेंट को देख के हमें पता लगता है कि सोसाइटी इस तरह की है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जब आसार कदीमा नजर आया, तो उसको देख के अंदाज़ा लगाया, जो चीज़ें दरियाफ्त हुई, कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लगाया कि वहाँ के लोगों का रुझान क्या था, वो किस तरह के ख्यालात और चीज़ें हो रही थी। एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पास के बारे में स्टडी करे, लेकिन सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी तो आज के बारे में बात। जैसे साइकोलॉजी मैंने आपको कहा, वो मेंटल प्रोसेस, इंडिविजुअल और मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन सोशियोलॉजी में कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। वो कहेगा सोसाइटी इसकी जिम्मेदार है, सोसाइटी ने इस शख्स को ऐसा बनाया, इसके पीछे इसका कोई दिमाग के न्यूरॉन्स और कोई डैमेज नहीं है, बल्कि सोसाइटी ने इसको करप्ट किया, सोसाइटी ने इसको क्रिमिनल बनाया, सोसाइटी ने इसको खराब किया। तो अगर आप इसको अप्रिशिएट करते, मोटिवेट करते, साथ देते,
तो आज ये ऐसा हाँ होगा। ये तो हमारे सोशल सोशल साइंसेस के साथ हो गए। इस तरह इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस। और अगर हम वन लाइनर दें, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी अबाउट हाउ टू अर्न एंड हाउ टू स्पेंड द scarce resources। तो ये जो वसाइल हैं, हाउ टू अर्न, हाउ टू स्पेंड, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, ये सब इकोनॉमिक्स के मसले हैं। ये वांट्स कैसे सेटिस्फाई होगी। इसको अगर हम कंपेयर करें सोशियोलॉजी के साथ, तो सोशियोलॉजी जो है वो सोशल इश्यूज को एड्रेस करेगी, माशी तौर पे नहीं, बल्कि वो माशरे को हर तरह से, हर लिहाज से। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस में आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, गवर्नमेंट्स के बारे में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी में आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, इदारों के बारे में पढ़ते हैं। और हिस्ट्री बात करें तो हिस्ट्री तो फैक्ट्स के बारे में पढ़ना है, हिस्टोरिकल इवेंट है। और सोशियोलॉजी में हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है, उनको बताना हमें कंपेयर टू हिस्ट्री, क्योंकि हमें इवेंट्स के बारे में, पीपल के बारे में, पास्ट के बारे में, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सोसाइटी में हम हिस्टोरिकल फॉर्म ऑफ सोसाइटी पढ़ेंगे, ताकि हम आज के ज़माने को बेहतर तरीके से समझ सकें। हमने जैसे कि देखा, इसका समअप करते हैं, हमने देखा कि नेचुरल साइंसेस से बिल्कुल मुनफरद है, क्योंकि ह्यूमन के बारे में बात करें। सोशल साइंसेज में हम सोसाइटी, सोशल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, यही इसका सब्जेक्ट मैटर है। और अगर हम पॉलिटिक्स को अलग कराएं, तो पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की फॉर्म और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बल्कि क्रिटिसाइज करते हुए नजर आती है। इकोनॉमिक्स हमेशा सिर्फ वेल्थ, हेल्थ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन चीज़ों में शो होते हुए नजर आते हैं। और उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ और सिर्फ कल्चर स्टडीज़ के बारे में, स्टडी अबाउट द ह्यूमन हमें फोकस करते हुए नजर आते हैं। और साइकोलॉजी इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में, मेंटल स्टेट के बारे में। सब के अलावा हम सोशियोलॉजी में देखें तो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज तो हैं, मगर सोशियोलॉजी इन सब में सबसे डोमिनेट क्यों है सोशल साइंसेस में, क्योंकि इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन भी है, इसमें हम प्रेजेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं, इसमें मैन को भी देखते हैं और मैन का रिलेशन विद अदर भी हम सब देखते हैं। तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सोसाइटी की डेफिनेशन देते हैं। गोल ऑफ साइंस हम बात कर चुके हैं कि सोसाइटी में क्या है, गोल जो है वो क्या है, किस तरह से इंडिविजुअल लुकिंग फॉर द पैटर्न्स और अप्लाई टू ब्रॉडर ग्रुप ऑफ सिचुएशन, प्रिडिक्ट स्पेसिफाई व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इन लाइट ऑफ करंट नॉलेज। साइंटिस्ट जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका मकसद होता है सिस्टमेटिक स्टडी करें, रिसर्च बेस्ड स्टडी हो उनकी। तो क्विक रिकैप है कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, यस साइंस है। और कैसी साइंस है? सोशल साइंसेस है, और साइंस ऑफ सोसाइटी है। और इस तरह से अगर हम बात करें सोसाइटी में, तो सोशोलॉजी के अंदर हमारे पास तीन तरह के लेवल है, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल। तो हम हाईलाइट करते हैं आप तरीके से देख सकें। जैसे कि आपने देखा, मैक्रो लेवल है एज अ होल, मैक्रो है कंपेयर किया।
माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ लार्ज scale system or the society as a whole, the study of long-term problem. जब हम सोसाइटी को एट अ ग्लांस एट अ होल इन लार्ज स्टडी करते हैं, ये मैक्रो लेवल है। और माइक्रो लेवल जब हम स्मॉल ग्रुप्स की बात करते हैं और एवरी डे डे टू डे इंटरेक्शन को, लाइफ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उससे समझते हैं, तो ये अपने सोशल इश्यूज से उसको रिलेट करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो ये माइक्रो लेवल है। और globalization, a process of creating a worldwide system of interaction larger than any one society। ये फिर पूरी दुनिया में जो एक सिस्टम है सोशल इंटरेक्शन का, उसमें इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो माइक्रो लेवल का मतलब है, माइक्रो लेवल है विद इन द सोसाइटी, मैक्रो लेवल है एज अ होल, और फिर ग्लोबलाइजेशन, इसमें पूरी दुनिया को सोशल इंटरेक्शन के साथ स्टडी किया जाता है। तो क्या फ़ायदा होगा स्टडी करके हमें? हम सोशल इंस्टीट्यूशन चला सकेंगे, हमें पता होगा तो हम सोसाइटी में बेटर सोशल इंटरेक्शन क्रिएट कर सकेंगे। सोसाइटी सोशोलॉजिस्ट हमें बेसिक नॉलेज देता है, हमें अपनी सोसाइटी के बारे में, और हम उससे अपनी बेसिक प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, कोई सोल्यूशन निकाल सकेंगे, द प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हाउ सॉल्व। और इस तरह डिफरेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में नज़र आती है। आपके सामने है रूरल अर्बन सोशोलॉजी, मेडिकल सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, मैंने आपसे बात की, क्रिमिनल को ट्रेन करके समझाया जाता है सिविलाइज मैनर में। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से पेनिट्रेट हो रही है आइडिया। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, ताकि जो ग्रुप एजुकेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। सोशोलॉजी ऑफ फैमिली है, क्योंकि फैमिली इज वन ऑफ द बेसिक पिलर ऑफ द सोसाइटी, और सोशल प्रॉब्लम और सोशल इश्यूज को बहुत अच्छे से हम एड्रेस कर पाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को आप लोग इस तरह से रिकॉल कर सकते हैं, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है, और सोसाइटी में हम सब क्या दे रहे हैं? एक परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस से बात क्या है? ये है परफॉर्मेंस। पॉलिटिक्स, ई इकोनॉमिक्स, आर रिलीजन, एफ फैमिली, ओ ऑर्गेनाइजेशंस, are recreation of the society in concept, mass media, action play, nationality or nation ideology, C community within the society, E education for all। ये परफॉर्मेंस हमारी सोसाइटी देती है, और ऐसा जो करता है वो परफॉर्मेंस सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का ये बहुत अच्छा बेहतरीन भी हमने आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर ने कहा, द वर्ल्ड इज अ स्टेज and society is a performance, and society is what? Society is composed of all these things, all these social institutions. I hope you will be better understand the topic. We will meet in the next session, inshallah, here at home. Allah Hafiz.